So just see, today we will start the linear algebra, right? Today we are going to start the linear algebra, and first we discuss what we cover in this part and how we cover. That is also very important. So now see the syllabus. Now see the syllabus. Basically, in this syllabus, first topic is basically the vector spaces, right? And every time from this unit you can say, I'm not telling only this particular topic, but yes, the question from the vector spaces or subspaces are linearly dependent basis and dimension. From this topic you will 100% sure you will get one question, right? One question in part B and one question in part C. Just see, this is a very small syllabus in comparison of real analysis, which gives maximum marks, right? 65 marks only you can get from linear algebra, right? Are you getting my point? So this is the, you can say that the first largest paper after real, right, where you can get maximum marks. So in this session basically first I will just start from the basic theory, right? Why this vector spaces is covered in this section, right? What is the meaning of vector spaces? One by one we deal. So it is 100% sure that you will get one question in part B, one question in part C from this section. But yes, your concept, your basic concept must be clear. What is the meaning of vector spaces? So first I just start with the vector spaces. Now I will just come across this mathematical definition, right? I will just discuss, but before that we need to know how to form the space. Vector spaces. What is the meaning of vector spaces? So two things are there. First is the vector and second is the space, right? So basically in the here we form a space by the vectors. We form the space by the vector, and everyone knows what is the meaning of vector quantity, right? Vector quantity means which required what? Vector means, लेट मी नो. अरे सभी को आवाज आ रही है? Yes, sir. Magnitude and what? Direction. Direction, right? I'm just starting from very basic level, right? So to define the vector is vector we need magnitude and direction. And if you define anything in the space, in that case first you need a what? A reference point, right? We need what? Reference point. So any vector space, if you are talking 2D or 3D or whatever, right? If you are forming any space, you just form any space. देखो basically once we talk about the linear algebra or abstract algebra, then there is a concept of structure. Structure means we form the structure by using the scalars, right? Scalar quantity means only by the magnitude, and with this we required what? स्पेस कैसे फॉर्म करेगा? विथ सम बाइनरी ऑपरेशन, उस पर ऐड करें, प्लस करें, माइनस करें, क्यों? यही तो है. Are you getting my point? So if we want to, let's suppose, form this structure, then we need first is the what? अगर यहाँ पे 1 है, लेट सपोज कर लीजिए यहाँ 2 है, तो हमें कुछ न कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स दिस structure must satisfy some of the binary operation, right? We need the vector quantity plus, it is not only this is vector, it is maybe scalar also, vector plus
बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन मीन्स व्हाट? बाइनरी ऑपरेशन सभी जानते हैं. तो बाइनरी ऑपरेशन दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, राइट. मतलब आप इसको बोल सकते हो कंपोजिशन, राइट. सो बाइनरी ऑपरेशन आर, यू कैन से दैट द इंटरनल oblique external composition. Now what is the meaning of internal external composition? Internal composition, let's suppose you have the set of real number, right? Every operation, this is the set, every operation are basically happening using this A B C D, every operation. If there is some, this is called internal composition. Internal composition means every element, every new element you can say, is created by using the element of this set of R only, right. If we are only created all the, this is new element A and B, these are two element of this set, so this is called what? This is called internal composition. If there is some external values, means external values means apart from this real, let's suppose there is some different value like 2 iota, this is from another space, another set, this is set of complex number, and once we do the binary operation by using two different set, or you can say that by two different spaces, right. So a प्लस 2y, अब इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन के, चाहे प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है, इंटरनल मतलब एडिशन के फॉर्म में भी हो सकता है. अब देखना पड़ेगा हाउ वी डिफाइन. सो एनी स्ट्रक्चर, इफ वी वांट टू फॉर्म एनी स्पेस, देन फर्स्ट वी रिक्वायर्ड व्हाट? सम वेक्टर क्वांटिटी, राइट. एंड one more important thing, this is the, you can observe 75% question in any competitive exam are based on this reference point, right. This reference point, if we want to form any space, first we need some reference point, that is called what? जीरो वेक्टर. इसी को बोलते हैं ना जीरो जीरो जीरो, अगर कोई चीज़ R3 स्पेस में आप डिफाइन करते हैं, राइट. सो फर्स्ट इसी नाते कहते हैं कि जीरो वेक्टर जरूर लाई करना चाहिए. अगर किसी कोई स्पेस ऐसा है जहाँ पे जीरो वेक्टर नहीं लाई कर रहा, इफ द जीरो वेक्टर इज नॉट देयर, this means that we cannot form the space. It is clear? Means we need some reference point where we can start each and everything. It is clear? Please let me know. Yes, sir. It is clear. So now come across the second thing. So vector means magnitude plus direction, right. अब सवाल ये है कि वेक्टर कैसे फॉर्म होगा, कैसे स्पेस फॉर्म होगा. सो स्पेस, तो अब देखो स्पेस के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा कि पहला वेक्टर क्वांटिटी है वो विद द सम बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली प्लस एंड डॉट, हाउ दे फॉर्म द स्ट्रक्चर. तो देखो एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक होता है फील्ड, राइट. एक होता है फील्ड और एक है आपका वेक्टर स्पेस, राइट. सो फील्ड की भी कुछ प्रॉपर्टी, ये जो एफ होता है ये स्केलर होता है. क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है. इसमें प्लस और डॉट के साथ जितने पॉसिबल ऑपरेशन है, सारे पॉसिबल ऑपरेशन करके एक स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं एक फील्ड बना लेता है. इस फील्ड के अंदर, इन दिस फील्ड, राइट, इन दिस फील्ड मीन्स फील्ड, अभी आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन कैसे काम करता है, कैसे हम from natural number we just extend the set of integer extend to q is extend to r. Now in r further we extend how this is the field is formed, basically r itself form the field. So field कैसे फॉर्म करता है, तो फील्ड के साथ ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन होते हैं. तो एक ऐसा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर when we say that it is basically vector space. So any vector space is basically defined over the field. कोई भी अगर ऑपरेशन लगाना तो स्केलर क्वांटिटी के हेल्प से ही आप ऑपरेशन लगा सकते हो, राइट. इट इज क्लियर. इस स्केलर की हम वैल्यू यूज करेंगे
we use this scalar to form another space, and that is called vector space. Now one by one we just see how any vector space defined over the field, right? So now see, देखो यहाँ सभी को दिख रहा है, थोड़ा मैंने क्योंकि लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, वैसे मैं आपको बताने ही वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे समझ लो, किसी भी वेक्टर स्पेस ओवर द डिफाइंड द फील्ड, व्हेन वी से दैट it is basically vector space when it will form the what vector space। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन सभी को समझ में आ चुका है ना? हेलो, क्लियर है सभी को या मुझे फिर बताना पड़ेगा? देखो इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन अभी आपको बताया। यस, नाउ सी, जैसे मान लो कि इफ देयर इज एनी फंक्शन which is defined from R cross R to R, right? Any function R space बोल सकते हो which is defined from R cross R to R, right? और एक ऐसा देखो, इसमें जो भी एलिमेंट लोगे, whatever you just take the element, all the element are come from A and B, A and B are from R। अब जब एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात करेंगे तो F के साथ देखो R क्रॉस R सेम एलिमेंट हमने लिया, बट अगर यहाँ पे V के साथ F ऐसे कोई अलग सा सेट आ जाए, मतलब ये समझो कि जैसे R क्रॉस F कोई अलग सा हम एलिमेंट लें और जब कंपोजिशन करते हैं, देन वी कैन से दैट इट इज व्हाट एक्सटर्नल कंपोजिशन। लेटर ऑन आई विल आल्सो डिस्कस, इवन इन द डेफिनेशन वी हैव आल्सो सीन हाउ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन आर डिफाइंड। तो पहला, अगर कोई स्पेस फॉर्म करना है फील्ड से, पहला फॉर्म करना चाहिए क्या? V जो सेट है प्लस के साथ विद द प्लस बाइनरी ऑपरेशन, दिस विल बी व्हाट एबिलियन ग्रुप। क्या फॉर्म करे? एबिलियन ग्रुप। टोटल 10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो देखो फर्स्ट 5 यू कैन सी ऑन द लेफ्ट विंडो, लेफ्ट साइड, दिस इज बेसिकली, इट इज बेसिकली एबिलियन ग्रुप। पहला क्या फॉर्म करना चाहिए? पहला 5 प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप की होती है, सभी को पता है। ए क्या होता है? इंटरनल कंपोजिशन। मतलब अगर इस V जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया है, इसका अगर 2 एलिमेंट मैं ऐड करूं तो भी कहाँ आना चाहिए? उसी में आना चाहिए, राइट, इन द सेम सेट। सेकंड, सभी को पता है व्हाट कम्यूटेटिव लॉ, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, राइट। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे एसोसिएटिव लॉ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा that is equal to alpha plus beta plus gamma, right? And 2 additional property everyone knows, what identity और क्या होना चाहिए? इनवर्स, राइट। एडिटिव, एडिटिव तो नहीं बोलोगे, मतलब चूंकि प्लस है तो एडिटिव हमें बोलना है, पड़ रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी एलिमेंट में अगर मैं उस एलिमेंट से ऐड करूं सो वही सेम एलिमेंट मिले, राइट। किसी भी एलिमेंट में अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी लेट सपोज कर लो 0 से ऐड करूं, सो वी ऑलवेज गेट द सेम एलिमेंट। एंड द इनवर्स ABCDE, दीज 5 प्रॉपर्टी। देखो एक बार सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को आप समझ लोगे, फिर मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, ध्यान दीजिए यहाँ से, अगर इनवर्स मीन्स अल्फा के साथ एडिटिव इनवर्स ऐड करूं सो वी गेट आइडेंटिटी, राइट। सो फर्स्ट 5 प्रॉपर्टी विच आर बेस्ड ऑन एबिलियन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, whether we will check this process in our exam because there are the 10 important property। क्या अगर कहीं आ गया कि प्रूव करो कि ये वेक्टर स्पेस है, तो क्या मैं इस 10 प्रॉपर्टी को प्रूव करूंगा? नो, आई विल टेल यू द शॉर्ट टेक्निक ऑल्सो। तो ये जितने ऑपरेशन है सब में देखो इंटरनल कंपोजिशन है ना। देखो सब में क्या है? ऑल द एलिमेंट आर टेकन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम V itself। इट इज क्लियर? So that's why there are 2 category of composition. First is what? Internal composition। तो देखो here the binary operation plus on addition satisfy this all these property are basically what? Internal composition। कैसा composition है? Internal composition। अब जो दूसरा
पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी वेक्टर स्पेस के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शो करने रहेंगे। देखो मैं फिर वही चीज़ हमेशा बार बार बोलता हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि बेसिकली वेक्टर स्पेस कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या इंटरनल कंपोजिशन लग रहा है, क्या एक्सटर्नल कंपोजिशन लग रहा है। वो बात की बात है कि अभी मैं एक लाइन में बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे टेक्निक यूज़ करनी है, राइट। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कई बार पढ़ भी चुके हो और मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। तो देखो अभी तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा, वन बाई वन वी आल्सो मूव टूवर्ड्स द एडवांस थ्योरी। सो फर्स्ट 5 प्रॉपर्टी विच इज़ बेसिकली, कई बार मैंने देखा इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि वेक्टर स्पेस बताओ क्या है, व्हाट इज़ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। तो बहुत सारे लोग एक एक प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी बोलने लगते हैं। कम से कम इस 5 प्रॉपर्टी को तो हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। एक लाइन में बता सकते हैं कि सर इफ वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, राइट, which is defined over 2 binary operation or with the 2 binary operation plus and dot, the first property is V just form, V means non-empty set, this is the set, right, which form the abelian group with the plus binary operation. And second important property is the external. देखो यहाँ पे binary operation लिखा है, इसको आप internal composition भी बोल सकते हो, internal कंपोजिशन, राइट। एंड सेकेंड इज द एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब देखो एक्सटर्नल कंपोजिशन आ गया तो बहुत क्लियर है कि कहीं बाहर से एलिमेंट उठाएंगे और वो एलिमेंट उठाएंगे फील्ड से। सो पहला देखो क्या है, अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी स्केलर हो, या कह सकते हो फील्ड के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, सी इंटू अल्फा, अल्फा इज बेसिकली फ्रॉम द वेक्टर स्पेस, राइट, इट इज क्लियर। अच्छा मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, सभी को दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा है। सो जस्ट सी दिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज व्हाट, स्केलर अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं सारे स्केलर से, यू द न्यू एलिमेंट इज अगेन इन द वी, राइट। सेकेंड इज देखो जब भी यहाँ जो भी मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाया है, लेकिन सी एंड डी आर फ्रॉम स्केलर। अभी हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, वी आर नॉट डीलिंग विथ वी क्रॉस वी आर ओनली डीलिंग विथ व्हाट, क्या कर रहे हैं अभी हम जितना भी कंपोजिशन ले रहे हैं अभी स्केलर है, राइट, ऑल दीज आर व्हाट स्केलर। सो सी डी, देखो सी एंड डी दीज आर फ्रॉम द फील्ड एंड अल्फा इज फ्रॉम द वेक्टर द नॉन एम्प्टी सेट वी, राइट। So if it also satisfy the associative law, that is C into D into alpha, that is C D alpha, right. Next again this is distributive over addition, देखो C अभी C alpha plus beta, so C alpha plus C beta for all C belong to this field F and alpha beta that is belong from this non-empty set, or you can say that the vector V. Now again the same thing here, the vector addition is what, alpha plus beta। देखो यहाँ भी जब हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया किसका, वेक्टर का, मैं फिर रिपीट करूँगा, द इंटरनल कंपोजिशन इज बेसिकली अकर्ड ऑलवेज विथ प्लस। अभी आप कहीं भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। वंस आई विल डिस्कस द लास्ट चैप्टर दैट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन आई विल टॉक अबाउट हाउ यू डिफाइन आर क्रॉस आर, आर वी क्रॉस वी, राइट, यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अभी इसमें जहाँ वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, इन वेक्टर स्पेस इन इनर प्रोडक्ट स्पेस में डिफाइन करेंगे फिर वी क्रॉस वी। सो यहाँ देखो यहाँ भी जो दो वेक्टर है उनके बीच एडिशन ही लगा है, राइट, कहीं मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इट इज क्लियर। सो सी इज स्केलर एंड अल्फा प्लस बी, देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा स्केलर के साथ होगा, राइट, और जब भी एडिशन आएगा वेक्टर के साथ। सो सी अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू सी अल्फा प्लस सी बीटा फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू दिस फील्ड एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू दिस वेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सी प्लस डी, फिर यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन है, सी प्लस डी इंटू अल्फा, अल्फा इज फ्रॉम व्हाट, वेक्टर स्पेस। सो जब भी करेंगे तो ये स्केलर होना चाहिए, सी प्लस डी, देखो सी एंड डी आर फ्रॉम स्केलर। So C plus D into alpha, that is C alpha plus D alpha
फॉर ऑल, देखो जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, हर एलिमेंट कहीं से उठा लो, पहले लाइन से उठा लो, देखो चाहे एबिलियन ग्रुप में हो, ऑल सारे एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट, इफ द सिंगल एलिमेंट ऑफ वी fails to satisfy the condition, we can say that this will not form the vector space. It is clear. And the last one is identity. देखो 1 into alpha, that is यहाँ भी जो किया गया 1 into alpha is equal to alpha स्केलर से, 1 being the identity element of the field, right? So any space, any non-empty set, you can say that अगर non-empty set जो आपका है, yes, नॉन एम्प्टी सेट V जो आपका प्लस और डॉट बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये 10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करे यूजिंग दिस 10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वी कैन से दैट इट इज व्हाट, Vector space. vector space, right? I will also tell you in one line how you can check in the exam, but try to understand many time this basic definition। और बहुत सारे लोगों से मैंने कई बार ऐसे पूछा, तो कई बार पढ़ते हैं लेकिन सारी प्रॉपर्टी कोई नहीं बता पाता, मतलब याद नहीं रहता, बताने की बात नहीं है, याद नहीं आता। तो आपको लर्न हो गया क्या करना है हमें, कुछ नहीं। 5 प्रॉपर्टी तो शॉर्ट में आपको समझ में आ गया, क्या एबेलियन ग्रुप जिसमें पहला इंटरनल कंपोजिशन है, अल्फा प्लस बीटा उसी में हो, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा कम्यूटेटिव, फोर्थ दूसरा कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव, फोर्थ आपका क्या है आइडेंटिटी, और फिफ्थ है इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत आसान है, आपका इंटरनल कंपोजिशन अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो भी एक्सटर्नल कंपोजिशन है अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ तो स्केलर के साथ होगा। जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव ला है चाहे एसोसिएटिव ला है, राइट, ऑल दिस विल वर्क विथ व्हाट, स्केलर, राइट। जितना स्केलर है उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। अब समझते हैं कुछ एग्जांपल्स। वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल। नाउ वेदर आर इज वेक्टर स्पेस ओवर आर, क्या अब सवाल वही है कि क्या मैं जाके इस 10 प्रॉपर्टी को चेक करूंगा, वेदर वी चेक ऑल दीज 10 प्रॉपर्टी टू चेक दिस, सो नो, राइट। अभी आप देखो, पहले कुछ प्रॉपर्टी आपको आसानी से पता होनी चाहिए और प्रैक्टिस से भी आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो होता है जिसके ऊपर ये डिफाइंड है ना, जब ये इसका एक्सटेंशन हो, राइट, एक्सटेंशन का मतलब ये जो वी डिफाइन है, ध्यान देना, अगर अपने से बड़े फील्ड पे डिफाइंड है, देखो ये अगर इससे ये बड़ा है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, इफ वी इज बिगर देन इट्स ओन फील्ड, अगर अपने फील्ड से बड़ा है तब ये वेक्टर स्पेस नॉर्मली फॉर्म नहीं करता है। आप बात समझ में क्या आ रही है, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे ये तो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर लेगा। सेकंड, एक और क्वेश्चन है, सी ओवर आर, ध्यान देना, ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म कर लेगा। थर्ड, अगर मैं कहूँ आर ओवर सी, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। आप ये चीज़ ध्यान दो, जब भी वी की बात करता हूँ, अगर ये एक्सटेंशन है किसका, इफ इट इज एक्सटेंशन ऑफ आर, तो हमेशा फॉर्म कर लेगा। ये अगर वी इससे बड़ा, अपने फील्ड से बड़े फील्ड पे डिफाइन कर रहे हैं, राइट, जिस फील्ड पे ये छोटा सा है स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर अपने से बड़े फील्ड पे है तो हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अब इसका एग्जांपल समझो तब आपको क्लियर होगा। नाउ सी, बेसिकली इफ यू आर टेकिंग एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठा लो, अल्फा लेट सपोज कर लो, फील्ड का ही एलिमेंट उठा रहे हो, और ये जो आर है इंटरनल कंपोजिशन, ये आपको वी यहीं से लेना है, इसको लेट सपोज कर लो एक्स। सो ये जो मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज ऑलवेज व्हाट, कहाँ आएगा, आर का ही एलिमेंट, राइट, ऑलवेज आएगा। अरे दो आप सेट ऑफ रियल लाइन को कोई भी 1 2 2 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेम आर में ही तो आएगा, रियल लाइन पे ही तो आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। लेकिन आप देखो इसको, देखो अगर आप किसी भी, देखो इंटरनल में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे, लेट सपोज यू आर एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर C1 plus C2, it is always the complex number, there is no issue. Even you rest of the 5 property you will check all these properties satisfy. even अब मल्टीप्लिकेशन का केस चेक करते हैं. अगर मैं लेट सपोज कर लो R एक रियल नंबर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी एलिमेंट लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो, सो इट इज 2 आयोटा एंड 2 आयोटा इज ऑलवेज एलिमेंट होगा R C का. यस, ये तो ऑलवेज C का एलिमेंट होगा, राइट होगा ना. लेकिन इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखो, इससे तो मैंने बोला कि अगर दिस इज बेसिकली यू कैन से द V फॉर बिगर भी बोल सकते हो. अगर ये बड़ा है किससे, अपने ही फील्ड से, तो ऑलवेज वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, राइट. क्लियर. अब यहाँ पे देखो ये R मतलब आप सभी जानते हो C जो है एक्सटेंशन है किसका, R का. रियल नंबर को जब हमने एक्सटेंड किया तो क्या मिला, अरे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये तो सभी को पता है ना कि नेचुरल नंबर का एक्सटेंशन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर. सेट ऑफ इंटीजर को एक्सटेंड करेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर. सेट ऑफ रेशनल नंबर को एक्सटेंड करके क्या बनाया गया, सेट ऑफ रियल नंबर. सेट ऑफ रियल नंबर को एक्सटेंड करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. तो ये जो C है ये अपने फील्ड से तो बड़ा है, वेरी क्लियर. सो दैट्स व्हाई दिस इज फ्रॉम द वेक्टर स्पेस. बट इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, अगर किसी, देखो यही तो प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी आपको जो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन बताया कि दोनों ही देखो C इंटू, अगर मैं ये 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ इस वेक्टर में तो भी इस वेक्टर स्पेस में होना चाहिए, यही बताया ना. लेकिन क्या यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा. अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो मैं जो आयोटा ले रहा हूँ ये C का ले रहा हूँ, स्केलर का A ऐसे लिख लो, राइट. C का एलिमेंट ले रहा हूँ, और मैं जो 2 ले रहा हूँ, 2 इज एलिमेंट ऑफ दिस R, राइट. या बोल सकते हो V का एलिमेंट ले रहा हूँ ना वेक्टर स्पेस. अब मैं जरा मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, आयोटा देखो A इंटू C निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. A इंटू इसको C ही सपोज कर लो, राइट, या अल्फा कर लो क्योंकि वेक्टर है तो स्केलर की तरह ना दिखे. A इंटू अल्फा. अब वही सेम कंपोजिशन लगाता हूँ I इंटू 2, सो दिस विल बी 2 आयोटा. क्या 2 आयोटा R का एलिमेंट होगा, नो. देखो C इज वेक्टर स्पेस ओवर R, देखो यही बताया ना, V इज डिफाइंड ओवर R. अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ फील्ड का A का और V कोई एलिमेंट अल्फा, देन प्रोडक्ट मस्ट बी बिलोंग टू दिस वेक्टर स्पेस. इसी वेक्टर स्पेस में बिलोंग करना चाहिए, राइट. इट इज क्लियर. लेकिन इस केस में ये दोनों वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो फॉर्म द वेक्टर स्पेस, बट द थर्ड वन will not form the vector space. Why? Once we do the external composition with the set of complex number, अगर करता हूं तो प्रोडक्ट करने के बाद उस V में नहीं आ रहा है. देखो यही तो V है, यही तो V है. V क्या है आपका, R, राइट. तो ये डिफाइन करता है कि अगर आपने एक्सटेंशन लिया है, मतलब जो जिस वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हो, अगर वो उसका एक्सटेंशन है तो ऑलवेज बिलोंग करेगा, राइट, ऑलवेज फॉर्म करेगा वेक्टर स्पेस. लेकिन अगर एक छोटा है उससे तो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा. इट इज क्लियर. प्लीज लेट मी नो. बहुत बेसिक लेवल पे मैं गया और बताने की कोशिश किया. एक चीज और समझना, जब भी आपके पास कभी भी वंस इट टॉक अबाउट, और बहुत सारे क्वेश्चन सभी को पता है वेक्टर स्पेसेस से, सब स्पेसेस से, अगर वेक्टर स्पेसेस सब स्पेसेस से नहीं आए तो डायमेंशन से उठा देता है. एंड डायमेंशन इज आल्सो रिलेटेड टू द वेक्टर स्पेस. अगर ये चीज़ आपको ठीक से समझ में नहीं आई तो फिर आगे की चीज़ें और भी दिक्कत हो सकती, राइट. इट इज क्लियर. प्लीज लेट मी नो इट इज क्लियर. अब ये सभी को क्लियर है कि क्या ये कैसे कंपोजिशन. तो देखो अब इन दोनों प्रॉपर्टी को, जो अभी दो प्रॉपर्टी बताया, दैट वी हैव डिस्कस द 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हाउ वी चेक इन आवर CSIR एग्जाम इन वन लाइन. तो पहला आप प्रॉपर्टी हमेशा देखो, जो पहले आपको बताया कि जीरो वेक्टर मस्ट बी बिलोंग टू दैट
दैट सेट। पहला, जीरो वेक्टर जरूर बिलोंग करना चाहिए, राइट। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये। जैसे ही मान लो अगर कहीं भी ऐसे दिया है, अब देखो ऐसे मैं लिख रहा हूँ, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। जैसे मान लो एक्स वाई जेड ले रहा हूँ, राइट, और कंडीशन लगा दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? तो आंख बंद करके कुछ भी ऐसा बहुत सेट दे देता है, और इसके साथ ये भी लिखेगा एक्स वाई जेड इज फ्रॉम आर। अगर ये वेक्टर है जो कि डिफाइंड ओवर आर, दिस इज ए सेट। देखो ये टपल्स, 3 टपल्स का सेट है। एक्स वाई जेड कहाँ है? रियल नंबर। मतलब ये पूरा स्पेस फॉर्म कर रहा है, ये इसका क्या है? ओरिजिन है, या बोल सकते हो कि क्या इसका जीरो वेक्टर पॉइंट, या बोल सकते हो रेफरेंस पॉइंट है। इस स्पेस में अगर ये सेट मैं ले रहा हूँ, देखो एक्स वाई जेड तो पूरे स्पेस में हर पॉइंट ले सकते हो, राइट, ले सकते हो ना। लेकिन उसके साथ कह रहा है ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या वे वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये चेक करो क्या इस जो नॉन एम्प्टी सेट दिया है वेदर जीरो वेक्टर आर देयर आर नॉट। एक लाइन में आप बता दोगे। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो एलिमेंट लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं 0 0 लेता हूँ तो इसका कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए? 0 + 0 इक्वल टू व्हाट? 2, विच इज इम्पॉसिबल, एंड हेंस दिस विल नॉट फॉर्म द वेक्टर स्पेस। देखो ये शॉर्ट टेक्निक है। ऐसे एग्जाम में जब भी वेक्टर स्पेस देता है 2 ऑप्शन वो इस तरीके से पूछ देता है कि आप आसानी से चेक कर सकते हो या नहीं चेक कर सकते। दूसरा, अगर कहीं भी वेक्टर स्पेस पूछता है, राइट, या लीनियर प्रॉपर्टी पूछता है, तो देखो आपको सभी को पता है लीनियर क्या है? y = x हो सकता है, राइट, जहाँ सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात की जाती है। दिस इज लीनियर अलजेब्रा, पूरा लीनियर कॉन्सेप्ट पे ही काम करेंगे, राइट। जब भी आप अगर कहीं ऐसा दे दिया कि एक वेक्टर स्पेस एक्स वाई फॉर्म कर रहा है सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 2, तो हमेशा ध्यान देना ये नॉन लीनियरिटी को शो करता है, राइट। इसकी डिग्री क्या हो गई? 2, x × y दैट इज 2। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कभी भी क्या नहीं फॉर्म कर सकता? लीनियर मतलब वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म कर सकता। वाई? दिस इज डिफाइन द नॉन लीनियरिटी, राइट। जैसे डिग्री 2 हो गया, फिर उसके ऊपर और डिग्री डिफाइन करने लगो, ऐसे जिगजैग, जितनी डिग्री बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा? मोशन जिगजैग करने लगेगा, राइट। इट इज क्लियर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। y = x, फिर y = x², फिर y = x³। जैसे ये लीनियर होता है, इसके आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड नॉन लीनियरिटी शो करेगा, राइट। तो किसी भी वेक्टर स्पेस को शो करने के लिए पहला पॉइंट है कि उसका रेफरेंस पॉइंट जरूर होना चाहिए जहां से पूरे स्पेस को हम डिफाइन करेंगे। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर? सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, अभी हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ा जो हर जगह यूजफुल है। एक तो पढ़ा वेक्टर एडिशन, राइट, पढ़ा ना, इंटरनल कंपोजिशन, और दूसरा हमने पढ़ा एक्सटर्नल कंपोजिशन, पढ़ा ना। दोनों ही वेक्टर में लाई करना चाहिए। कौन कौन सा? इंटरनल कंपोजिशन मीन्स इफ देयर आर 2 vectors alpha and beta from V and once we add it is again in this। और सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर है। तो इन दोनों को मिक्स करके एक दूसरी प्रॉपर्टी बनाएंगे, A alpha + B beta दिस मस्ट बी ऑल्सो बिलोंग टू दिस, राइट। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है आपको बाकी कोई भी प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत क्या है? नहीं, राइट। प्लीज लेट मी नो। सो ये दोनों प्रॉपर्टी, दीज 2 प्रॉपर्टीज आर एनफ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। नो नीड टू गो फॉर ऑल दीज 10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आपको नहीं जाना है। आपको जब भी एग्ज़ाम में करना है, एग्ज़ाम में हमेशा स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है, हार्ड वर्क पे ध्यान नहीं देना है। हार्ड वर्क कब करना है? एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क करना है। इट इज़ क्लियर? सभी को क्लियर है? यस सर। ये प्रणव कौन है? मैं कई बार पूछ चुका, कल भी कोई जवाब नहीं दिया। कोई आप? नमस्ते सर।
नमस्ते नमस्ते। प्रणव कौन है ये? हेलो। हाँ हाँ, बताइए। ये प्रणव कौन है? प्रणव जो बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप जानते ही नहीं कौन आप बोल रहे हैं? हेलो रोहतास, आपने किसी को फॉरवर्ड किया क्या? हेलो नमस्ते सर। नमस्ते रोहतास, बताइए। सर बिजी सर। थोड़ी देर। अच्छा आप म्यूट कर लो रोहतास, इसके बाद हम उससे बात कर लें क्योंकि आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। चलो, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, डोंट ट्राई टू फॉरवर्ड दिस लिंक टू एनीवन, दिस इज रिक्वेस्ट, राइट? बिकॉज यू हैव पेड, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस वन, राइट? एंड अगर किसी का 1-2 लेक्चर है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अटेंड कर सकता है, लेकिन पहले मुझसे बात तो कर ले। तो यहाँ पे देखो आप, ये सभी को क्लियर है हाउ दिस वेक्टर स्पेस इज फॉर्म। तो आपको एग्जाम में कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है? दिस टू प्रॉपर्टी, राइट? इट इज क्लियर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सभी को क्लियर हो गया कब कोई चीज़ वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, कब कोई चीज़ वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। इट इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो। हो Yes, जाएंगे प्रॉब्लम? चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम उठाते हैं, और कई बार बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से सॉल्व भी किया होगा। अच्छा एक और प्रॉब्लम उठा लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे भी आएंगे। चलो एक मैं आपको सभी को पहले, क्योंकि सभी को पता है कि पढ़ते पढ़ते हम वही चीज़ सेम रटते रटते क्या होता है ना, आदत पड़ जाती है। तो चलो मैं एक वेक्टर स्पेस बोलता हूँ कि क्या ये वेक्टर स्पेस होगा। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। मैट्रिक्स के ऊपर भी डिफाइन कर सकता है, राइट? लेट सपोज कर लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, राइट? दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स। ये वी ले रहा हूँ वेक्टर का एलिमेंट, वेयर एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, दिस इज एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, राइट? और मैं फील्ड को भी डिफाइन कर रहा हूँ, फील्ड विच इज बेसिकली स्केलर है, सारे एलिमेंट सेम है जो फील्ड है, ठीक है? और C इज आल्सो एलिमेंट ऑफ दिस R। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, दिस V ओवर F इज वेक्टर स्पेस R में। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कंपोजिशन बताया, राइट? ये आपका क्वेश्चन है। सभी को मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ। यू पीपुल जस्ट ट्राई टू सॉल्व, और मुझे बताओ क्या ये जो मैट्रिक्स का है स्पेस फॉर्म कर रहा हूँ। जस्ट मिनट। यस, वेदर इट विल फॉर्म द वेक्टर स्पेस आर नॉट। सभी को 3 मिनट का टाइम देता हूँ, सभी मुझे बताएंगे करके। जैसे सेम वैसे ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर है ना सभी को? जब तक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं देंगे तब तक चीज़ें वही रटे रटाए, वही CSIR के क्वेश्चन बार बार मज़ा भी नहीं आता। क्यों? सॉल्व तो करना ही है CSIR के सारे प्रॉब्लम। Everyone just solve with this. Let me know whether it will form the vector space over the field or not. जो भी फील्ड के एलिमेंट लोगे वो क्या कैसा रहेगा? सारे एलिमेंट कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, राइट? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एवरीवन जस्ट रिस्पॉन्ड हियर। एक चीज़ सभी ध्यान देंगे, चाहे वो नए हों चाहे पुराने हों, सारे लोग इस पूरे लीनियर अलजेब्रा को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। रीजन आप जानते हो, मैं फिर आपको बता चुका हूँ कि
हर बार लेक्चर लूँगा तो हर बार एक नए तरीके से नए क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। आप सभी को एहसास भी होगा, पिछली बार जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया और अभी पढ़ाया, आप दोनों वीडियो देखो, दोनों में एक तो आपको एक्सटेंशन आपको मिलेगा कि पहला जो पढ़ाया और अभी पढ़ाया, दोनों में बहुत फ़र्क आपको दिखेगा, क्योंकि मैं भी डिफरेंट ऑथर्स की बुक देखता रहता हूँ। तो कोशिश ये करता हूँ कि आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज, कोई चीज़ आपको बचे नहीं, लेकिन हमेशा इम्प्रूवमेंट का भी चांस हर आदमी में होता है। तो आपको नए तरीके के नोट्स ज़रूर मिलेंगे। इस नाते कोई भी चीज़ है ना सोचो कि मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, सर ने एक बार मुझे पढ़ाया, सेकेंड टाइम आई विल नो नीड टू, ये हमारी सिर्फ भूल है। हर दिन नए रिसर्च होते रहते हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप हर चीज़ को हैंडल करना भी सीखिए। अभी तक किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। Nobody have responded whether this will form the vector space or not. फॉर्म करेगा? अच्छा, ध्यान देना सभी जो बोल रहे हो। लास्ट 1 मिनट। चलें, चलो अब इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा कि आइडेंटिटी और क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, दो चीज़ें आपको पता है। यहाँ पे देखो, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, एक चीज़ है, हर प्रॉपर्टी हमें देखना पड़ेगा कि 1 into अल्फ़ा इज ऑल्सो बिलोंग टू अल्फ़ा, अल्फ़ा बीइंग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड, राइट? क्लियर? हेलो। सो आप फील्ड का कोई एलिमेंट, हाँ, फील्ड का कोई एलिमेंट ले लो, लेट सपोज कर लो 2 2 2 ऐसे कोई एलिमेंट ले रहे हैं, तो और आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना चाहिए, राइट? 1 into अगर मैं कोई भी एलिमेंट v का लेता हूँ तो v होना चाहिए, यही होना चाहिए ना? हेलो, अरे कहाँ चले गए सब? क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है इस फील्ड में? इस फील्ड का क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है? क्योंकि देखो सारे एलिमेंट तो दिया क्या, सेम होने चाहिए, तो क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है? अरे क्या 1 है? आइडेंटिटी एलिमेंट कोई लोगे तो ये आपको 1 अगर आप सपोज करते हो, या कोई भी एलिमेंट, तो आपको क्या ये लेना पड़ेगा ना? आपको लेना क्या चाहिए? आपको लेना चाहिए क्या, ये लेना है। लेकिन क्या है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट? क्योंकि सी सारे एलिमेंट सेम है, दिख रहा है? देखो यहाँ से आपको बताया, हेलो, ये देखो 1 into अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा 1 बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड। क्या फील्ड का आइडेंटिटी एलिमेंट है? अगर आप लेट सपोज कर लो, सपोज ही कर लेते हो कि फील्ड का एलिमेंट 1 है या 2 है, जो भी आप सपोज कर, ये दिख रहा ना 1 बीइंग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड, तो अगर क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है उसमें, 1 है उस फील्ड में? मुझे तो नहीं दिख रहा 1 है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, राइट?
अरे हाँ ना बोलो, क्लियर। Yes, sir. और ये है नहीं। अगर लेट सपोज कर लो हमने कोई एलिमेंट सपोज भी कर लिया, लेट सपोज दिस इज लाइक 2 2 2 2, राइट, एंड इसका v का आइडेंटिटी एलिमेंट सभी को पता है 1 0 0 1, राइट। अगर ये हमने आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज कर लिया, राइट, ध्यान दो, ये तो अगर ये वेक्टर ही है जो भी है आप सपोज करो, तो ये आना क्या चाहिए मल्टीप्लाई होने पे, अरे आना क्या चाहिए, अगर हमने इसको आइडेंटिटी सपोज भी कर लिया तो आना चाहिए हमें, ध्यान देना, वी आर गेटिंग द सेम थिंग, यही मिल रहा है ना। देखो मिलेगा क्या, अरे मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलेगा आपको, बताओ ना। आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, इससे करोगे ये भी, ये भी एलिमेंट क्या होगा 2 आएगा ना, और ये भी क्या आएगा 2, यही आएगा ना। आना क्या चाहिए, अगर मैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज करता हूँ तो आना चाहिए क्या 1 0 0 1 आना चाहिए, यही है ना, ये वेक्टर का एलिमेंट है। देखो मैं आपको बात क्लियर है, इसको मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज किया और ये वेक्टर का एलिमेंट है 1 0 0 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है a आ रहा है, दिख रहा है। तो इस फील्ड में आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही नहीं है, 1 कहाँ है 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड f, अरे हाँ ना बोलो। और अगर मैंने किसी को अगर आइडेंटिटी सपोज भी कर लिया तो भी ये फेल कर जा रहा है। अगर मान लो 2 2 2 2 को मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज कर लिया, 4 4 किसी को सपोज कर लिया, तो भी क्या आ रहा वो, क्योंकि भाई एलिमेंट तो सेम लेने पड़ेंगे। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट। सो इस पे थोड़ा और सोचना और मुझसे डिस्कस करना। दिस विल नॉट फॉर्म द वेक्टर स्पेस। सो कभी कभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ से आपको बहुत केयरफुल भी रहना है, राइट, इट इज़ क्लियर। इतना आसान सा चीज़ नहीं है कि जहाँ कुछ भी रैंडमली कुछ भी आप चला देंगे, बहुत बारीकी से आपको सोचना है और फिर डिसाइड करना है। ये प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है, ऑल दीज 10 प्रॉपर्टी। तो कहीं से ये देखो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो यूनिक टाइप की प्रॉपर्टी है, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट फील्ड में जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. So now see, one question I just give you all from the CSIR question paper. Following are subspace of, अच्छा एक चीज़ और देखो, इसमें आ गया सब स्पेस, राइट। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, मतलब यहाँ पूछा हुआ सब स्पेस। तो देखो जैसे हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा वैसे ही सब स्पेस भी है। सब स्पेस का मतलब है, अगर लेट सपोज कर लो V इज़ ए वेक्टर स्पेस जो सारे कंडीशन 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अगर V, इफ वी आर टेकिंग एनी सबसेट ऑफ दिस V विच आल्सो फॉर्म द वेक्टर स्पेस, राइट, this the subset of V, it is given this is already vector space, right. And if we are taking any subset S of this vector V space V, and this itself also form the vector space, then S is called what, vector what, subspace। clear, it is clear। तो ये भी कह सकते हो ये भी एक वेक्टर की सारी क्वांटिटी को फॉलो करेगा। अभी एक प्रॉपर्टी बताया उसी पे बेस्ड है, एक्स वाई जेड सच दैट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSIR। आप रैंडमली तुरंत बता सकते हो जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया कि विच वन इज राइट विच वन इज रॉन्ग।
रॉन्ग ऑप्शन तो तुरंत बता सकते हैं, आपको सभी को प्रॉपर्टी पता ही है। अभी मैंने आपको क्या बताया, पहला क्या होना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSIR, राइट, इन पार्ट सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया, हेलो, जीरो वेक्टर जरूर लगता है। अभी मैंने दो प्रॉपर्टी, देखो ये दोनों 99% क्वेश्चन पे आपके काम कर जाएंगे। दिस ओनली टू इम्पोर्टेंट। एक आध एक्सेप्शनल केस के बारे में नहीं कह सकता, जैसे ये एक केस था जहाँ पे आपको उसको बियॉन्ड होके जाके सोचना था, राइट, तो वैसा केस के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन 99% क्वेश्चन में। तो अगर मैं यहाँ पे 0 0 वेक्टर लेता हूँ, 0 0 0, सो वी विल गेट 0 + 0 दैट इज 0। ये तो दिख रहा सही है। 0 0 0 यहाँ भी लेते हो, 0 - 0 दैट इज 0, ये भी सही है। यहाँ पे अगर 0 वेक्टर लेते हो, इफ़ यू आर टेकिंग 0 वेक्टर, तो यहाँ देखो क्या होगा, 0 0 0 अगर लेता हूँ तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा इसकी जो प्रॉपर्टी 0 + 0 = 1, विच इज़ इम्पॉसिबल, एंड दैट्स वाई दिस कैन नॉट बी फ्रॉम द वेक्टर। 0 वेक्टर जरूर लाई करना चाहिए, एक रिफरेंस पॉइंट जरूर होना चाहिए। इट इज क्लियर, देयर मस्ट बी ए रिफरेंस पॉइंट। क्लियर, यहाँ भी देखो 0 - 0 कह रहा है, 0 - 0 = 1। हाउ दिस इज पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ये दोनों के बारे में आगे तो हम चेक ही करेंगे बाकी प्रॉपर्टी, लेकिन ये दोनों ट्रू भी है, और आगे चल के हम इसमें आपको बताएंगे भी कि हाउ यू कैन चेक विद इन 1 मिनट, राइट। इट इज क्लियर, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सो हाउ वाज द लेक्चर। थोड़ा सा मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, घबराना नहीं, लेकिन आपकी एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा, राइट। इट इज़ क्लियर, हेलो। Yes, sir. सो देखो ऐसे भी एक PDF ले आऊँगा जहाँ पे आप थोड़ा सा क्रॉप करके आसान, वैसे मैंने ये सारे PDF आपको प्रोवाइड भी किया है, ऐसा नहीं है कि प्रोवाइड भी नहीं किया है। ये आपको मेरे ख्याल से वशिष्ठा की बुक सभी के पास है ना, या SK मापा की बुक भी है मेरे पास, लीनियर अलजेब्रा की, चाहो तो भी ले लेना, राइट। मेरे ख्याल से एक बुक तो आपको प्रोवाइड ही किया है सभी को, और आज मैं नए ग्रुप को शेयर भी कर दूंगा लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स, राइट। और आप उससे भी पढ़ते रहिए, इससे भी पढ़ते रहिए, जितने लाइव सेशन हो रहे हैं उनको भी अटेंड करो, कोशिश करो अटेंड करके अगर कहीं कोई डाउट है तो उसे भी क्लियर करो, राइट, क्योंकि ये रियल टाइम होता है। यहाँ पे मैं 2-3 मिनट का टाइम भी आपको देता हूँ जहाँ आप खुद क्वेश्चन को बैठ के करते हो, राइट। वो बात अलग ही आपको मिल जाए और वीडियो को पॉज करिए फिर सोचिए, वो एक अलग होता है। ये एक तरीके से आप रियल टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलो, ये आप सभी को पता है बिगेस्ट पेपर है